Good morning, dear friends. In today's talk show, we are with Dr. Nishta Serene, Intervention Cardiologist, Tennessee, USA. Proud to have her for all our members. She is founder and medical director of Women Heart Program for Ascension, Michigan, and Tennessee. She is a board certified intervention cardiology, general cardiology, coronary, CTA, endovascular medicine, nuclear cardiology, echocardiography, and internal medicine. She is an intervention cardiologist with Ascension Medical Group with expertise in heart health in women, microvascular dysfunction, high risk percutaneous intervention, and peripheral interventions. Dr. Serene has served as a medical director of Women Cardiovascular Services for the Ascension, Michigan market, which include 15 hospitals with 7 hospitals as cardiovascular center. Great. Of excellency and now serves for the state of Tennessee. Detroit Crane's Business Magazine 30 in their 30th award recipient. She is D Business 40 under 40 and featured in Forbes Swiss, CEO Weekly and Business Insider. She has received International Steve Award for Woman of the Year in Healthcare Gold and Global Recognition Award for the Healthcare Motivation. Dr. Serene completed Medical School of Rabindranath Tagore Medical College, Rajasthan, India University with 13 gold medals, completed part of medical clinics with high honors at Harvard Medical School and her internal medicine residency training at Hofstra North Shore Hospital, New York. She credits her inspiration in her father, Dr. Ravindraji Serene, who is one of whom defined patient care for her. She is our own from India in USA. We are proud to have a proud daughter of Dr. Deven Serene, Udaipur, a senior colleague of IIP. Great to have you, Dr. Nishta. Over to you. Thank you, Dr. Tudeja. It is my honor and privilege to be here today. I'm going to go ahead and share my screen and my presentation. Thank you for having me here today. मैं English और हिंदी दोनों में I'll speak and present. But of course, अगर you need me to change, please intervene if there's anything you need me to clarify. I'm very grateful to be here today. Or just what I wanted to focus on, आज जब हम बात करेंगे, is about how is heart disease different in women, और ऐसा क्या है women heart health में जो हम मिस कर रहे हैं. जब women आती हैं with chest pain, I'll present a case जो हम लोगों ने यहाँ पर hospital में किया कि they come with chest pain और सारी testing जो है वो abnormal लगती है, and जब हम heart catheterization करते हैं तो arteries open होती हैं. तो what is next? What is microvascular disease? What does it mean? What is microvascular dysfunction? Why do we care? Is it something जिसके लिए we should be concerned about? तो what is microvascular dysfunction? इसके लिए मैं quick case present करूंगी कि एक 63-year-old female हमारे hospital में present हुई with chest pain, or it was going उनके arm के अंदर, it was going in their jaw. She had been to the hospital 20 times, 20 बार since 2024. And जितनी बार वो आई उनको 8 heart catheterizations मिली, because बहुत ऐसे कम chest pains हैं जो jaw में और arm में जाते हैं. And सारे मेरे cardiology colleagues will kind of akin to it, and they'll understand कि yes, this is something that needs to be evaluated. In fact, there was evidence कि उनके heart muscle में damage था by troponin test almost 18 out of 25 times when she had presented. Medical history में she had a pacemaker, उनको hypertension था, dyslipidemia था, और chronic kidney disease थी, heart failure as well. This is all the medications that she was taking at that time, but सब कुछ presumed diagnosis पे थी, and obviously none of this was working. EKG, normal sinus rhythm, no major changes for us to rush her to the cath lab.
So we decided we'll do an echocardiogram, and you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पे left ventricle है, normal function of the left ventricle, left atrium looks good, her mitral valve, tricuspid valve, right side of the heart also looks pretty good. ये subcostal view है, आप देख सकते हैं there's no fluid around the heart at all. So overall, a normal looking heart with no major issues. I also have a picture of her aortic valve, which looks good. And again, normal functioning right ventricle and left ventricle. We went ahead and did a stress test on her. ये images है stress test की at rest. आप देख सकते हैं कि all the heart muscle is getting good blood flow. At stress, कोई खास difference नहीं है. तो the stress test was read as negative on her. जब हम लोगों ने however इसका polar map किया इनका, तो you can see right here कि रेस्ट पे there is some defect, स्ट्रेस पे थोड़ा सा इंक्रीज है डिफेक्ट में. सो वन ऑफ माय कॉलीग्स जिन्होंने इसको देखा, उन्होंने कहा दो इतना कंसर्निंग नहीं है, बट द फैक्ट कि थोड़ा सा blood flow in the heart has decreased with stress, we should go ahead and do a cath on her again. So we went ahead and did a heart cath. इसकी उनकी RCA को मैं इंजेक्ट कर रही हूँ. You can see पूरी आर्टरी is completely open. फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को हमने इंजेक्ट किया. लेफ्ट मेन इज ओपन, ये इनकी एलईडी है और सर्कमफ्लेक्स है. रियली कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है. सो द बिग क्वेश्चन इज कि जो 25 बार लोग पहले कर चुके थे हार्ट कैथेटराइजेशन के बाद, क्या आप ये कहेंगे कि इस फीमेल को कोई हार्ट इश्यू नहीं है, आर्टरीज ओपन है, आप घर जा सकती हैं, या फिर इज देयर समथिंग एल्स वी कैन डू? हमारी गाइडलाइंस क्या कहती हैं? एंड दैट्स वेयर द टेस्टिंग दैट मैं आज जिसकी बात करूंगी इट कम्स इन. सो व्हाट वी डिड, ये गाइड कैथेटर है और हमने इनकी फ्रंट आर्टरी के अंदर एलईडी के अंदर एक कैथेटर, माइक्रो कैथेटर, आप ध्यान से देखिए तो स्मॉल कैथेटर राइट देयर, उसको पोजीशन करके वी इंजेक्ट अ मेडिकेशन कॉल्ड एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन इज अ मेडिकेशन जिसमें आर्टरी शुड नॉर्मली इंक्रीज इन डायमीटर, इट शुड इंक्रीज ब्लड फ्लो. बट आप देख सकते हैं कि एसिटिलकोलिन डालने के बाद इनकी फ्रंट आर्टरी ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्पैज्म में आ गई है. अब मैं इनको कंपेयर करने के लिए आपको दिखाऊंगी कि बेसलाइन पर दिस वाज द फ्लो और मेडिकेशन देने के बाद उनकी फ्रंट आर्टरी ऑलमोस्ट कंप्लीटली यहाँ पर क्लोज हो गई है. दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ वेसोस्पैज्म. और वेसोस्पैज्म केवल एक पार्ट है. द सेकंड पार्ट इज हम लोग एक कैमरा डाल के उनकी आर्टरी की पिक्चर्स देते हैं, विच कैन बी डन ईदर एज विद एन OCT, optical coherence tomography, या IBUS, and this is what the artery looks like on the inside. आप देख सकते हैं कि intima, media, adventitia completely normal है, no major plaque anywhere in the artery. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक branch आ रही है, but no major blockage. और फिर हम थर्ड टेस्ट पे आते हैं. जो थर्ड टेस्ट है उसे कहते हैं माइक्रोवास्कुलर स्टडी, और ये है a lot of numbers and a lot of colors, but the basic idea is, आप देखें रेस्ट पर ब्लड को पहुंचने में फ्रॉम द गाइड कैथेटर टू द हार्ट मसल कितना टाइम लगता है, और फिर हम हार्ट को स्ट्रेस करते हैं, और स्ट्रेस करने के बाद इन द कैथ लैब हम वापस चेक करते हैं कि ब्लड को गाइड कैथेटर से हार्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है. अंडर स्ट्रेस हमारा ब्लड फ्लो शुड इंक्रीज बाय 2.5 और वो है CFR, और आप देख सकते हैं इनके अंदर CFR केवल 2 तक इंक्रीज हुआ है. IMR का मतलब होता है कितनी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर्टरीज के अंदर. नॉर्मल इज 25 एंड लेस, इनका IMR was 49. सो हमने जो टेस्टिंग की उसे हमें समझ में आ गया कि इनके कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है. हाउएवर जो इनकी आर्टरी है डज नॉट बिहेव करेक्टली विद एसिटिलकोलिन, जहां पर डायलेट होना चाहिए आर्टरी कंप्लीटली क्लोज अप हो रही है. एंड तीसरा हमने ये भी देख लिया कि इनका IMR हाई है, यानी इनको माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन है. बेस्ड अपॉन दैट हम लोग काफी मेडिकेशंस चेंज कर पाए. वी वर एबल टू स्विच हर टू ओनली वेरापामिल विद एस्पिरिन एंड स्टैटिन. हाउएवर शी केम बैक, वापस आई वो चेस्ट पेन के साथ, सिम्टम्स इंप्रूव हुए बट नॉट कंप्लीटली. तो अब हम क्या करें? At this point हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है that really helps us. हमें पता है कि major problem is that she does not react well to acetylcholine. So there is a way कि हम इसको surgically भी treat कर सकते हैं. इसलिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर ब्लॉकेज के कारण चेस्ट पेन नहीं आ रहा तो कहाँ से आ रहा है. इस पेशेंट के अंदर हमने पहले स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक किया और उसके बाद हमारे सर्जन्स ने sympathectomy की by thoracic robotic surgery, and उसके बाद में she was completely fine. उनको 3 weeks post op हमने देखा, वो सब कुछ कर पा रही थी. medications पे केवल 3 medicines पर हैं and she is able to do what she needs to do. So microvascular dysfunction है क्या?
It is a condition that affects small arteries of the heart जो हम completely देखते नहीं हैं. अगर आप में से किसी ने, आपके किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने ये बातें सुनी हैं, तो फिर you should think about microvascular disease or bring it to your physician. कि सिंस आपके हार्ट में कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है, आपको स्टेंट की जरूरत नहीं है, आपके सिम्टम्स हार्ट से नहीं आ रहे, या स्ट्रेस टेस्ट वाज फॉल्स एबनॉर्मल, देयर इज नो मोर हार्ट टेस्टिंग नीडेड एट दिस टाइम, या फिर आपकी प्रॉब्लम एंजाइटी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम लंग्स हो सकती है, विच इज फाइन, और आप लंग डॉक्टर को देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, लंग्स आर फाइन, या आपकी प्रॉब्लम स्टमक हो सकती है और आप जीआई डॉक्टर को कहते हैं, दे से इट्स फाइन, या फिर अगर आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है एंड आई हैव टू लिव विद माय सिम्टम्स, या फिर कि मैं जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं कर नहीं पा रही, या फिर मेरे को लग रहा, मेरे को बोला जा रहा है इट्स ऑल इन माय हेड, आई फील लाइक आई एम बीइंग डिसमिस्ड, दैट इज द केस व्हेन आप इसकी बजाय कि आप कॉन्स्टेंटली हार्ट कैथेटराइजेशन करें, स्ट्रेस टेस्ट करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप माइक्रोवास्कुलर टेस्टिंग कराएं. गाइडलाइंस क्या कहती हैं, क्या ये समथिंग इट्स पब्लिश्ड? तो यूरोपियंस हैव endorsed this since 2017. वो लोग काफी टाइम से ये टेस्टिंग कर रहे थे. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2021 में हम लोगों ने इसे गाइडलाइन में एक्सेप्ट किया है कि अगर किसी को भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, so there are some proportion of men who will also have this condition. विमेन में ज्यादा कॉमन है बट मेन में भी होती है. अगर चेस्ट पेन है और कोरोनरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं है हार्ट कैथेटराइजेशन पे, तो फिर वी शुड ब्रिंग देम इन एंड टेस्ट देम for microvascular dysfunction. And this is what microvasculature looks like. अगर आप देखें, on the top is the arteries जो हमें दिखती हैं heart catheterization में, जो मैंने आपको photos दिखाई, and at the bottom आप देख सकते हैं वो पूरा network जो है, same network supplies the heart, same network supplies our brain and our kidneys. So there are studies जो ये कहती हैं कि microvasculature अगर heart में problem है, it could also contribute to dementia and kidney issues. So there's a lot of your passion around it. बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं. आज हम बैठ के इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? Why should we care about it? क्या ये मैटर करता है अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है? अगर हम देखें रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, प्री हॉस्पिटलाइजेशंस, it is higher in patients who have microvascular disease versus who do not have it. Large amount of studies have been done that tell us कि इन पेशेंट्स में डेथ भी इंक्रीज होती है, हॉस्पिटलाइजेशंस इंक्रीज होते हैं, और हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक रिस्क भी इंक्रीज होता है. 50%, एक में से 2 पेशेंट हु हैव दिस कंडीशन कम से कम 3+ कार्डियोलॉजिस्ट को देखते हैं विदाउट फिगरिंग आउट क्या हुआ है. अप टू 10 years डायग्नोसिस में लग जाते हैं. 1 out of 2 will retire early. Most of them have reduced functional hours, and of course dementia and kidney issues के साथ भी there is significant association. एक चीज मैं I want to just briefly focus on इसकी हमें याद रखना पड़ेगा कि जब हम लोग हार्ट अटैक के पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं कि विमेन में जब हार्ट अटैक होता है उनके सिम्टम्स कैन बी वेरी डिफरेंट कंपेयर टू मेन. चेस्ट पेन, चेस्ट प्रेशर, जॉ में जाना, आर्म में जाना, उन स्टडीज में 85-90% ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर मेन. विमेन में जब मैं आई डू दिस फॉर अ लिविंग कि मैं आर्टरीज खोलती हूँ लोगों की, एंड व्हेन अ फीमेल कम्स टू मी विद अ हार्ट अटैक, उनके सिम्टम्स होंगे कि मुझे बस टायर्ड फील हो रहा था, मुझे बस नींद सही नहीं आ रही थी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, इंडिजेशन वेरी कॉमन, कि मुझे लग रहा था जैसे मेरे को एसिड हो रहा है जब मैं वॉक करती हूँ, या मुझे लगता था मेरा हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है जब मैं वॉक करती हूँ. अगर कोई भी सिम्टम है जब आप वॉक करते हैं या आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना हार्ट टेस्ट कराएं. अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, हम इतनी बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की इतनी बात करते हैं, पर हार्ट डिजीज kills 6 times more women compared to breast cancer. It kills more women than all cancers combined in women. It's a big killer. And बहुत शॉकिंग चीज ये है कि अगर आप देखें कि लोगों को कितना मालूम है ये बात, हमने women को इकट्ठा करके पूछा कि आपका सबसे कॉमन रिस्क ऑफ डेथ क्या है, और 2009 में जहां पर women used to think केवल 8% को लगता था कि ब्रेस्ट कैंसर है, अब 10 साल बाद 17% को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है. मैं नहीं कह रही कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस कम होनी चाहिए, बट डेफिनेटली वी शुड टॉक मोर अबाउट हार्ट डिजीज इन वुमेन, ताकि वुमेन अंडरस्टैंड कि इट्स देयर नंबर 1 किलर.
एंड हाउ डू वी टेस्ट इट? देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. हम लोग स्कैन्स कर सकते हैं. मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं, जहाँ हम पेशेंट्स को अपनी कैथ लैब में लाकर टेस्ट करते हैं. इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ही कम ऐसी लैब्स हैं जो ये पूरी टेस्टिंग करती हैं, एंड वी आर वन ऑफ दोज ग्लोबली हु आर एबल टू डू दैट. ये है कि जब एक बार ये चीज डायग्नोज हो जाती है, सर्टन कंडीशंस जैसे कि एसिटिल कोलिन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हमारे पेशेंट में था, दे कैन अंडरगो स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक या फिर सिम्पैथेक्टमी इंटरवेंशन प्रोसीजर्स. बट otherwise in most patients even medications and cardiac rehab can be significantly impactful and quality of life भी significantly improve होती है. हमारे पास डेटा है from retrospective studies कि अगर हम इन पेशेंट्स को, अगर इनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो भी अगर हम लोग इनको स्टैटिन देते हैं, बेबी एस्पिरिन देते हैं, वी आर एबल टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक इन दीज पेशेंट्स. आप क्या यहाँ से लर्न करें आज कि कब हमें माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन के बारे में सोचना है फैमिली मेंबर्स को लेकर. हमको अगर आपको ये कहा गया है अगेन एंड अगेन कि नहीं, एंड आई कैनॉट एम्फसाइज ऑन द स्लाइड इनफ कि आपका स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल है बट आर्टरीज ओपन है, think about it. Do not try to live with those symptoms and do not give it up. क्योंकि एक बारी स्ट्रोक हो जाती है, एक बारी हार्ट अटैक हो जाता है, उसके बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल है. प्रिवेंशन इज द की. I do talk about concept of triangle, which is really important. I want to touch upon it really briefly. कोई भी हार्ट टॉक देती हूँ, I just want to make sure कि हम बार बार ये बात करें कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या खाना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए और कौन से नंबर्स को फॉलो अप करना चाहिए. सही खाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो चूज करें वो कलरफुल हो. मेक श्योर देयर इज लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है. हम जब प्रोटीन खाते हैं, हमारे हर पर्सन की पाम के साइज का प्रोटीन होना चाहिए, थिकनेस एंड द साइज. तो इसलिए हर इंसान का प्रोटीन डिफरेंट होता है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम वाइट मीट्स खाएं अगर आप मीट खाते हैं. नहीं तो लेंटिल्स एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस आर आल्सो ह्यूमंगस. सोयाबीन इज एक्सीलेंट एज वेल. आपकी प्लेट ऐसी दिखनी चाहिए. दिस इज अ स्टडी बाय हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. अगर आप वेजिटेबल्स को मेजोरिटी में रखें, फ्रूट्स भी सारे फ्रूट्स एक जैसे नहीं होते. आप फ्रूट खा रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लुकअप करें. ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई है, फ्रूट इज नॉट गुड. रूल ऑफ थंब, बेरीज आर गुड, बनानास आर नॉट दैट गुड. अब ब्रोकली, एक कप ऑफ ब्रोकली खाते हैं, इट हैज मोर प्रोटीन देन चिकन. सो आप जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करेंगे अपनी डाइट में, दे गो अ लॉन्ग वे. एक चीज जो मैं सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपका कुकिंग ऑयल स्विच करना सबसे इजी चीज है. घर में जिस तेल में खाना बन रहा है उसे आप हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए एवोकाडो ऑयल में बनाएं और लो टेम्परेचर कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज करें. पीने के लिए पानी, अवॉइड पॉप. even sugar free agents have issues with them. Of course, exercising. अब हम किसी भी पेशेंट से बात करें, सब कहते हैं हम तो वॉक करते हैं, हम तो हेल्दी हैं, हम अपनी वी गेट आवर स्टेप्स इन. बट हमारी recommendations क्या कहती हैं? How much amount of exercise is actually going to make a difference? So the recommendation is 150 minutes of moderate activity in a week. What does this mean? It means कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, you should not be able to speak in full sentences. जब आप sentences में full नहीं बोल पाते, that's when the clock starts. तो उससे पहले जो भी किया है, that doesn't count. एक्सरसाइज तभी काउंट होगी अगर आप फुल सेंटेंसेस में बोल नहीं सकते while you're exercising. अगर आप उतनी एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, that meets the definition of moderate exercising. And you have to do 150 minutes a week. अब चाहे आप उसको 15 मिनट के वर्कआउट्स करें 10 बार या आप 30 मिनट के वर्कआउट करें 5 बार. It depends upon how you want to do it. And of course, your statistics are important. So stats में हमें क्या watch करना चाहिए? ये 3 अगर आप watch कर रहे हैं, you'll be on track. One is weight, of course. And फिर weight और height को meters में, weight in kilos and height in meters में अगर आप online calculator में डालते हैं, it will calculate your BMI, basal metabolic index. There is some controversy around it कि ये लोग कह रहे हैं कि it doesn't distinguish between muscle and adipose tissue. But until we get something more reliable, हम लोग अभी भी इसी पे rely कर रहे हैं. You want to watch it very closely. Waist circumference, this is 35 and 40 inches is for Caucasian people. For Asians, for us, it should be 32 inches for women and 35 inches for men. Waist circumference and less is the right amount of waist circumference to have. Doctor को कब देखना चाहिए?
गाइडलाइंस कहती हैं कि आप 45 इयर्स के हैं तो आपने एक बारी डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए, बट मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट देखी है या देखा है जिनमें हार्ट अटैक हुआ was 18 years old. तो you never know, क्योंकि उनको undiagnosed lupus था and we only diagnosed it after the CAT. So अगर आपको symptoms हैं, family history है, या आपकी खुद की कोई history है, या आपको shortness of breath है, कोई भी symptom है with activity, with exertion, you should get checked. Evaluate होना is always a good idea. Of course, अगर आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक के साइंस हैं, आपको कंसर्न है, get to the hospital as soon as possible. मैं एक बात बता सकती हूँ कि हम जब हार्ट अटैक के लिए ऑन कॉल होते हैं, हमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना पड़ता है विदिन 30 मिनट्स ऑफ बीइंग कॉल्ड, क्योंकि जब पेशेंट के चेस्ट पेन चालू होता है और अगर आर्टरी 100% ब्लॉक्ड है, हमारे पास केवल 90 मिनट्स होते हैं उस हार्ट को बचाने के लिए. सो इट्स टाइम सेंसिटिव एंड द क्लॉक स्टार्ट्स बाय अस रिकॉग्नाइजिंग कि दिस इज अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल. There are some patients, 46-year-old female, जिसको केवल चेस्ट में फ्लटरी सेंसेशन हुआ, chills, nausea, vomiting, diarrhea, used to happen mainly with exertion, but वो kept ignoring it. कभी कभी chest pressure भी होता था, had ended up having 100% blockage in the front artery of the heart. What I want to really reinstate is कि women के अंदर symptoms can be different. If it's happening with exertion, seek attention soon, because this is a condition जो बहुत time sensitive होती है. Thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Nishtha, and very well presented. And I am very much sure कि हिंदी अंग्रेजी जो है वो पूरे भारत में आपके नाम से छा जाएगी. Thank you. क्योंकि आई आई थिंक कि मतलब सब फैमिली मेंबर भी सुनेंगे, और मैं तो चाहूंगा कि मेरी फैमिली के में भी जितनी मैन और वुमेन हैं सब लोग सुने इसको, क्योंकि इट इज सच ए, आपने इतने सिंपल वे में सब कुछ कह दिया है. और मेरे ख्याल से यू आर रियली क्रिएटिंग नेम ऑफ देवेंजी इन यूएसए, एंड आई एम रियली, he is proud of you, but I am really also proud of you, that you are really creating name of our India in USA. And thank you so much to be with us on this show, and nice to have you. Thank you so Thank much. you. Thank you, Dr. Tureja. Thank you for having me. It's my honor. आप जो कर रहे हैं, that is very, very impressive. Thank you for all your tireless efforts कि आप awareness raise कर रहे हैं, which is so needed. So thank you for everything you're doing, and thank you for having Thank you so much. Bye. me.